Yes, today's topic is emerging trends. Now, in emerging trends, we will learn introduction to emerging trends, artificial intelligence, big data, IoT, Internet of Things, cloud computing, grid computing, and blockchain. So, this is your syllabus which you have to prepare. Now, these topics, introduction to emerging trends, computers have been around for quite some time now. New technologies and initiatives emerge with each passing day. In order to understand the existing technologies and have a better view of the developments around us, we must keep an eye on the emerging trends. Many new technologies are introduced almost every day. Some of these do not succeed and fade away over time. Some of these new technologies prosper and persist over time, gaining attention from users. Emerging trends are the state of art technologies which gain popularity and set a new trend among users. In this chapter, we will learn about how emerging trends that will make a huge impact in the future on digital economy and interaction with digital societies. So these are your emerging trends which are coming and it will take over our future trends. So artificial intelligence, these little bit you have done. I will show you the question answers today. A knowledge base is a store of information consisting of facts, assumptions, and rules which an AI system can use for decision making. So, for making any decision, for taking any type of decisions, we can use this AI and it will help you. Like when if you Google search it and if you ask Google that Google, please help me, what should I do in my future? I am learning these all subjects, these are my streams, and which branch I should take, which college I should opt for, which will be the best one for me. You will see Google will help you. Clear? It is a program, it is a machine, but it will help you. How it is helping you? It is helping you with the knowledge which it has stored, the informations, the facts. Till now, whatever facts, information it is having, with that it will help you. That these all streams are there and it will try to help. Then machine learning, natural language processing. So little bit all you have done. Today I am showing you some question answers. Then in detail we have already discussed all these things. So these are the question answers which will come in your annual exam. Now, what is the difference between AI, machine learning, and deep learning? See, all are same. Artificial intelligence, machine learning, deep learning. तीनों का डिफरेंस लिखना है तुम लोगों को. ठीक है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओरिजिनेटेड अराउंड 1950s. 1950s में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हुआ. मशीन लर्निंग ओरिजिनेटेड अराउंड 1960s. Deep learning originated around 1970s. AI represents simulated intelligence in machine. Machine learning is the practice of getting machines to make decisions without being programmed. And deep learning is the process of using artificial neural networks to solve complex problems. जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, सेम वैसे ही डीप लर्निंग काम करता है. ठीक है. इसमें भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. AI इज अ सबसेट ऑफ डेटा साइंस. ये तो खाली कलेक्ट करना है. जैसे अभी हम लोग पांडास पढ़ेंगे, उसमें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डेटा साइंस पढ़ेंगे, हम कलेक्ट करेंगे डेटा एनालिसिस करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो ये तो नॉर्मल हम जो डेटा कलेक्शन और उससे हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. और मशीन लर्निंग क्या कर रहा है? मशीन लर्निंग डिसीशंस ले रहा है. कोई भी काम करना है तुमको, जैसे तुम इफ यूज करके डिसीजन लेते हो कि इफ योर स्ट्रीम इज this, then you can opt for these all exams. If your stream is this, then you can go for these all exams. तो ये तुमने if लगा के किया है. ठीक है. और डीप लर्निंग जो है वो कुछ और ही है. वो क्या कर रहा है कि पूरे इंटरनेट से वो कलेक्ट करके तुमको क्या करना चाहिए. तुमने डीप लर्निंग तुमने पूछा गूगल से कि मेरे को फ्यूचर में किस जॉब में जाना चाहिए, क्या बिजनेस करना चाहिए,
कैसे मैं अपने नॉलेज को शेयर कर सकूं या फिर यूज कर सकूं, ठीक है। एम इज टू बिल्ड मशीन्स विच आर केपेबल ऑफ थिंकिंग लाइक ह्यूमन। ये खाली मशीन बनाना है तुमको जो इंसानों की तरह सोच सकता है। एम इज टू मेक मशीन लर्न थ्रू डेटा सो दैट दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये डेटा से कुछ सीख के फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, मशीन लर्निंग। और डीप लर्निंग एम इज टू बिल्ड न्यूरल networks that automatically discover patterns for feature detection। automatically पूरे patterns को कि ये अगर 2020 में ये हो रहा है, 21 में ये हो रहा है, तो इसको पता चल जाएगा कि 22 में क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये पैटर्न्स को स्टडी करके आगे का क्या होने वाला है वो पता लगा लेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गिवन। ये सारे क्वेश्चंस है एनुअल एग्जाम्स के, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। इसी टाइप से तुमको आंसर लिखना है। ऑलरेडी तुमने बुक में से जब पढ़ रहे थे बुक में, तो तुमको पता है इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। जस्ट इसके एंड में ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम लोग, IoT, फिर ये PAS, ग्रिड कंप्यूटिंग। Yes. Now already you have studied about artificial intelligence, machine learning, natural language processing, virtual reality, then augmented reality, robotics, big data, data analytics, IoT, Internet of Things, sensor. So all these things will come in your exam, cloud computing and blockchain technology. So this is your complete syllabus. This will come in your exam. So you can get what is blockchain technology, what is cloud computing, then what is infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. So it is providing you the service through infrastructure, platform or software. Then what is sensor, what is our Internet of Things. So already you have gone through the syllabus. You know the notes. So let us complete the question answers. So what is artificial intelligence? Give an example of where AI is used on a daily basis. Artificial intelligence is an area of computer science that emphasizes the creation of intelligent machines that work and react like humans. The capability of a machine to imitate the intelligent human behavior. Clear? It is trying to behave like human, trying to help. So best example is your Google search. See, in Google search, you haven't typed the whole text. Only you have started typing and you can see it is helping you. This machine is helping you. So this method is artificial intelligence. That is, I have typed only TEXT and then I have typed M. Now from M, all it is showing here. It can be mining, it can be anything, it can be. So it is showing it is trying to help you. Google search engine is an example. One of the most popular AI application is the Google search engine. If you open up your Chrome browser and start typing something, Google immediately provides recommendations for you to choose from. So you have to choose from the option. The logic behind the search engine is artificial intelligence. So this is the best example. If in question paper they will ask you, write one example of artificial intelligence, what you will write? Google's search engine. कॉपी में नोट्स बनाते जाओ शॉर्ट में, क्योंकि वन वर्ड आंसर्स तो आएंगे हैं। डेफिनेशन तो बुक से मिल जाएगा। वन वर्ड आंसर्स जो है AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल क्या है? गूगल्स search engine. Now AI uses predictive analytics, NLP and machine learning to recommend relevant searches to you. These recommendations are based on data that Google collects about you, such as your search history, location, age, etc. Thus Google makes use of AI to predict what you might be looking for. तो Google क्या क्या कलेक्ट कर रहा है? सर्च हिस्ट्री, तुमने क्या क्या सर्च किया है वो पूरा स्टोर करके रखता है, ठीक है। तुम्हारे फुटप्रिंट्स पूरे रह जाते हैं। तो सर्च हिस्ट्री उसके पास, तुम्हारा लोकेशन जो है अगर उसको ऑन कर दोगे तो लोकेशन चला जाएगा, एज चला जाएगा उसके पास। अब उस एज ग्रुप के क्या
शौक है, क्या हॉबीज़ है, उसको वो हेल्प करेगा उसी चीज़ से। जैसे अभी तुम 11th में हो तो कॉलेजेस के लिए पता कराओगे, कोर्स के लिए, सिलेबस के लिए, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन पेपर, सो इट विल ट्राई टू हेल्प यू विथ ऑल दोज थिंग्स। लोकेशन के हिसाब से तुम्हारे लोकेशन में कुछ भी नया स्टार्ट हो रहा है वो उसको फॉरवर्ड करेगा। Search history, whatever you are searching, you want to make any dishes, or you want to learn singing, you want to learn dancing, so that search history it will see and it will try to help you with those data. Next, what are the different types of AI? So this one, not to go in so much depth. So here, reactive machines AI, limited memory AI, theory of mind AI, self-aware AI, artificial narrow intelligence, artificial general intelligence, artificial superhuman intelligence. ये different types of AI होते हैं. Explain the different domains of artificial intelligence. ये थोड़ा सा लिख लोगे तुम लोग, क्या क्या different domains हैं artificial intelligence के. Machine learning, मशीन कैसे काम कर रहा है, कैसे मशीन से काम कराओगे, सीपीयू दिख ही रहा है तुमको. न्यूरल नेटवर्क्स पूरे तुम्हारे हिस्ट्री को लेकर फिर उसके ट्रेंड्स को स्टडी करके, मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी करके, न्यूरल नेटवर्क्स. रोबोट, आजकल सारे रोबोट्स बनने लगे हैं जो ऑटोमेटिक हमारे हिसाब से वो काम करें. एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट क्या करेगा, जो मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ वो मेरे को एक्सपर्ट सिस्टम हेल्प करेगा. सपोज तुमको फ्यूचर में किस कॉलेज में जाना चाहिए, क्या स्ट्रीम लेना चाहिए, क्या कोर्स लेना चाहिए, ऑल विद दैट नॉलेज इट विल प्रोवाइड. देन फजी लॉजिक, ऑल द लॉजिक्स इफ एल्स करके उसमें पूरा प्रोग्रामिंग रहेगा, और ऑल द लॉजिक्स इट विल. देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP. Clear? So these are all the things, all of AI. Now next is, how is machine learning related to AI, artificial intelligence? Artificial intelligence is a technique that enables machine to mimic human behavior. बोलो. टाइप ऑफ डोमेन वाला फिर से बताइए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन्स. देखो, मशीन लर्निंग क्या करता है, इज द साइंस ऑफ गेटिंग कंप्यूटर्स टू एक्ट बाय फीडिंग देम डेटा सो दैट दे कैन लर्न अ फ्यू ट्रिक्स ऑन देयर ओन. कंप्यूटर में हम ऐसे प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, तो ये अपने से कुछ काम, ट्रिक्स ऑन देयर ओन, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम टू डू सो. हमको एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है. कंप्यूटर्स को हम ऐसे टू एक्ट बाय फीडिंग देम डेटा डालने से ही वो अपने आप सर्च करके तुमको दिखा रहा है. तो हमको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, वो अपने से जो काम कर रहा है वो चीज हो जाता है मशीन लर्निंग. मशीन अपने से डेटा फीड कर देने के बाद, जैसे मैंने गूगल सर्च में डाला हाउ टू ट्रैवल टुडे फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, और आई वांट टू लर्न समथिंग, हाउ टू लर्न AI, व्हाट इज AI, ठीक है. तो मैंने खाली डेटा डाला, डेटा डालते ही उसने मेरे को हेल्प किया, ठीक है. मेरे को अलग से एक्सप्लिसिटली मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा. दिस इज मशीन लर्निंग. मशीन इज ट्राइंग टू हेल्प यू. नेक्स्ट इज न्यूरल नेटवर्क्स. दे आर अ सेट ऑफ एल्गोरिथम्स एंड टेक्निक्स मॉडल्ड इन अकॉर्डेंस विद द ह्यूमन ब्रेन. ठीक है, जैसे हम सोचते हैं, हमारा ब्रेन जैसे काम करता है उसी के हिसाब से ये तैयार किया गया है. न्यूरल नेटवर्क्स आर डिजाइन टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स. कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, एडवांस्ड प्रॉब्लम है मशीन लर्निंग के, वो सब न्यूरल नेटवर्क सॉल्व करता है, ब्रेन की तरह है. देखो, एक चीज बता दे रही हूँ मैं तुमको. जब तुम्हारा जन्म हुआ था, when you were born, that time you were not knowing anything. ठीक है, तुमको कुछ भी नहीं पता था. मतलब ये जस्ट एक कंप्यूटर के ब्रेन की तरह है जिसको कुछ भी नहीं पता है. अब क्या हुआ, तुम्हारे जो सेंस ऑर्गन्स है, तुमने देखा, तुमने सुना,
और फिर तुमने सीखना शुरू किया। तो ये मशीन को हम क्या कर रहे हैं, डेटा डाल के हम उसको सिखा रहे हैं। रिलेट करो दोनों को, कंप्यूटर को और ह्यूमन बीइंग को रिलेट करो। ठीक है, तुम जब बॉर्न हुए थे तब तुमको कुछ भी नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है, क्या हमको करना चाहिए, क्या करने से अच्छा होगा, कुछ भी नहीं। सोसाइटी में या योर पेरेंट्स या जो तुम देख के, तुम्हारे आईज, तुम्हारे ईयर सुन के ये तुम सीख रहे हो। सीख के फिर क्या हुआ कि हाँ मैंने कुछ कोई बच्चा जब कुछ उठा के मुंह में डालता है तो उस समय अगर उसकी मम्मी उसको मारी या डांटी, मतलब वो गलत बात है, दैट इज रॉन्ग। तो नेक्स्ट टाइम उसको क्या डर रहेगा कि मैं अगर इस गंदे चीज को मुंह में डालूंगा तो मेरे को मम्मी मारेगी। तो वो नेक्स्ट टाइम, ये देखो प्रोग्रामिंग हो रहा है, ह्यूमन बीइंग का ब्रेन प्रोग्राम हो रहा है। उसके पहले तक उसको नहीं पता था। ठीक है, जब उसको एक बार मार पड़ा, डांट पड़ा, तो उसको समझ में आ गया कि अच्छा ये चीज को मुंह में डालने से मेरे को मार पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, उस चीज को मुंह में नहीं डालेगा, उसको एक डर बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड थिंग क्या है कि खाने के बाद फिर उसको अच्छा लगना, टेस्ट, एक एक टेस्ट ले लेके खाना। धीरे 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 क्या होगा कि उसका ब्रेन पूरा प्रोग्राम हो रहा है। अब क्या हो गया है, अब सोसाइटी ने तुमको प्रोग्रामिंग कर दिया है। हो सकता है उसमें कुछ गलत प्रोग्रामिंग भी हुआ होगा। ठीक है, जैसे सोसाइटी ने ही तुमको सिखाया होगा कि झूठ बोलना सिखाया होगा, तुम खुद से नहीं सीख के पैदा हुए थे। कोई बच्चा कोई भी गलत काम सीख के नहीं पैदा होता है। ठीक है, झूठ बोलना हो या फिर कोई गलत काम या चीटिंग करना हो, ये सोसाइटी ने सिखाया। कैसे, तुमको मार्क्स फुल लाने हैं, मार्क्स अच्छे नहीं लाओगे तो तुमको डांट पड़ेगा। तो ये तुमने सीखा कि अच्छा मेरे को अगर मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे तो मेरे को घर में डांट मिलेगा, या फिर फ्रेंड या फिर कोई मजाक बने, मीन्स आई हैव टू स्कोर दिस मच। तो उसके लिए आप तुमको सोसाइटी तुमको फिर गलत काम सिखा रही है कि यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, अब उसमें तुमको पता है कि हार्ड वर्क करके भी गुड मार्क्स आ सकते हैं या फिर कोई दूसरे तरीके से। तो तुम्हारा ब्रेन को क्या है कि वो शायद प्रोग्राम हो चुका है कि नहीं हमको थोड़ा इजी, आई एम लिटिल बिट लेजी सो लेट अस यूज सम इजी मेथड। तुमको ब्रेन को खुद को प्रोग्राम करना है, कंट्रोल करना है कि नहीं ये गलत चीज है ये सही चीज है। ठीक है, और आज की डेट में तुमको पता चलना चाहिए कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। अगर मैं बोलूं कि ये सही है, उसको चुपचाप नहीं मान लेना चाहिए, बिकॉज you also know, there are many things with experience we can share with you. Yes, that I can tell. Suppose I can tell you that these things are wrong. Maybe today you will not feel it, but after 10 years, 20 years, yes, madam told me that it was wrong. तो वो हमने एनालिसिस करके, अभी तुमको नहीं समझ में आएगा वो चीज की, मतलब जो हम बोल रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ उसको समझ जाओगे। ठीक है, तो ये काम पूरा न्यूरल नेटवर्क्स के है। ये डेटा कलेक्ट किए जा रहा है और उसको स्टोर कर रहा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स को सॉल्व कर लेता है प्रॉब्लम्स को। फिर वो एनालिसिस कर रहा है कि पिछले बार जब बारिश हुआ था तो ये हुआ था, यहाँ फ्लड आया था, उसका मतलब इस बार भी अगर इतना बारिश होगा तो इस जगह में फ्लड आ सकता है। तो उसके लिए पहले से हमको वहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर करना चाहिए। जब हमने ग्रेन्स को स्टोर किया था तो इस जगह पे दीमक लग गया था, इतने महीने तक स्टोर होगा। तो ये क्या है, पास्ट के डेटा से वो पास्ट का डेटा भी, डेटा के साथ साथ उसके प्रॉब्लम्स, उसका जो सोल्यूशन, सब कुछ उसके पास है। तो उसी से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, नाउ रोबोटिक्स इज अ subset of AI which includes different branches and applications of robots. These robots are artificial agents acting in a real world environment. An AI robot works by manipulating the objects in its surrounding
by perceiving, moving and टॉकिंग रेलिवेंट एक्शन। आजकल रोबोट्स बन चुके हैं जो होटल्स में फूड सप्लाई करने से लेके बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के काम कर रहे हैं। तो वो क्या है, रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को कैसे हैंडल करना है। जैसे ऑटोमेटिक गाड़ियां बनने लगी हैं, कोई गाड़ी को टच करेगा तो गाड़ी अलार्म बजा देगी कि कोई उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है आर्टिफिशियली बनाए गए हैं और रियल वर्ल्ड को कैसे हैंडल करना है एनवायरनमेंट को, ये सब कर रहे हैं। Next, expert systems. An expert system is a computer system that mimics the decision making ability of a human. हम जो अपना डिसीजन लेते हैं कि अभी मेरे को गर्मी लग रहा है तो फैन ऑन करना है, अभी मेरे को अगर ठंडी लग रहा है तो फैन ऑफ करना है, तो ये जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, ऑटोमेटिक देखोगे बहुत जगहों पे ऑटोमेटिक फैन ऑफ हो जाता है, एसी ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिक एसी ऑन हो जाता है। तो ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो ह्यूमन बीइंग के पास है, ये मशीन में डाला जा रहा है। It is a computer program that uses artificial intelligence technologies to simulate the judgment and behavior of a human or an organization that has expert knowledge and experience in a particular field. किसी एक फील्ड में किसी कोई एक्सपीरियंस्ड है तो उसका पूरा जजमेंट एंड बिहेवियर उस इंसान का, सपोज कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर उस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो इस मशीन के पास वो अपना पूरा नॉलेज दे देगा, तो वो मशीन क्या करेगा, थोड़ा बहुत डॉक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। कैसे, सपोज तुम्हारे पास एक मशीन है जिसको पता है कि ये डॉक्टर जो है इस सिम्टम्स में ये मेडिसिन देते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास कोई पेशेंट आता है और उस मशीन से बोलता है कि मेरे को फीवर है, कोल्ड है और हेडेक है, तो फट से वो मशीन क्या करेगा, मेडिसिन का लिस्ट दे देगा। मतलब उसने क्या किया, उसने उस डॉक्टर के बिहेवियर को फॉलो करके कि वो डॉक्टर इन सिम्टम्स में ये मेडिसिन देता है, वो स्टोर करके डाटा रख लिया, और नेक्स्ट टाइम जब हमने बोला कि हमको ये सिम्टम्स है, तो जो डॉक्टर हमेशा से मेडिसिन देते आए हैं उसी मेडिसिन को उस मशीन ने रिकमेंड किया। नेक्स्ट, फजी लॉजिक सिस्टम. Fuzzy logic is an approach to computing based on degrees of truth rather than the usual true or false Boolean logic on which the modern computer is based. Fuzzy logic systems can take impressive, distorted, noisy input information. Means हर टाइप के इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करेगा और उसको हमने खाली ट्रू और फॉल्स डाल के नहीं रखा है, उसको हमने अभी के इंफॉर्मेशंस के हिसाब से डिग्रीज ऑफ ट्रुथ, अभी का जितना इंफॉर्मेशन उन इंफॉर्मेशन में सारे इवन नॉन प्रिसाइज, डिस्टॉर्टेड, नॉइसी। हाँ, बुलियन लॉजिक मतलब क्या है? बुलियन मतलब खाली सही या गलत, मैंने डिस्टॉर्टेड नहीं होता है। या तो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि यू विल गो फॉर बीसीए और नॉट, तो यू आर गिविंग ओनली येस और नो, यू कैन नॉट टेल नो मैडम आई विल नॉट डू बीसीए, आई विल डू बीबीए, सो दोज इट विल नॉट टेक। तो बुलियन लॉजिक में खाली येस, ट्रू और फॉल्स, हाँ या ना, ठीक है, ओनली हाई और लो, इन बिटवीन यू कैन नॉट गिव द अदर आंसर्स, डिस्टॉर्टेड आंसर्स अलाउड नहीं है उसमें। ठीक है, जितना तुमसे मांगा जाएगा। फसी में क्या है कि वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड मी, सपोज यू हैव आस्क्ड मी दैट मैडम व्हाट इज द डेट ऑफ आवर एनुअल एग्जाम, क्लियर, नाउ आई डोंट नो द डेट, so I am not giving you the date, so what I am telling you that I am giving some distorted answer. What you have asked, I am not giving you the exact answer, but I am giving you the dates will come from RO and I am giving you some other answer. Clear? So other than that exact true and false, some other truth, other things also it will collect and it will store it. उससे भी informations निकल के आते हैं। ठीक है, मैंने अगर तुमको अभी ऑप्शन दिया कि साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज या फिर तुम्हारे इसके बाद तुम खाली आईआईटी, उसके बाद क्लैड एग्जाम या फिर तुम बीकॉम के ये एग्जाम्स लिमिटेड, मैंने तुमको लिमिटेड वो दिया, तुम इसके अलावा कुछ और करना चाहते हो
तो ये फजी लॉजिक में क्या है, अदर देन दीज ब्रांचेस देयर आर मेनी मोर ब्रांचेस दैट यू कैन ऑप्ट फॉर. ठीक है, तो अदर देन ट्रू एंड फॉल्स, खाली हाँ या ना, यू कैन स्टोर ऑल द अदर ऑप्शंस और द अदर इंफॉर्मेशंस ऑल्सो. Next is natural language processing. Natural language processing refers to the artificial intelligence method that analyzes natural human language to derive useful insights in order to solve problems. Now, these days you might have seen that we are talking to Google and we are asking Google to do this work. Mobile में वो sound to कोई भी साउंड से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो आई एम आस्किंग ओके गूगल यू डू दिस वर्क फ्रॉम मी, और ओके गूगल हाउ टू learn computers, how to learn AI. So it is taking my sound and then it is converting it into information, and it is storing the information, it is collecting the data as per the information and providing to me. ठीक है, तो ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब सब अपना अपना लैंग्वेज यूज करके उसमें डेटा डाल रहे हैं. नेक्स्ट इज हियर, हाउ इज मशीन लर्निंग रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो दीज थिंग्स वी विल डू in the next class. So just go through the book best method, and these questions first you prepare it, what is artificial, then the examples of each one already in the book they have explained you very nicely, then these question answers also I will share with you, so very nicely you can prepare all these things. Clear? And with real life you just see all the examples of real life, where big data is working, where robotic is working, where artificial intelligence और NLP का एग्जाम्पल. ठीक है, अपने रियल लाइफ से जोड़ के इस चैप्टर को जब पढ़ोगे, ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड द बुक विथ यू, NCERT बुक. नाउ इस चैप्टर को जब पढ़ोगे तुम क्या करोगे, रियल लाइफ में कहाँ काम कर रहा है, तुम्हारे मोबाइल में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, तुम्हारे घर में कौन कौन सा चीज़ ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक फ्रिज बंद करने पे लाइट ऑफ हो जाता है, तो क्या क्या चीज़ IoT में पढ़ोगे तुम, या फिर मोबाइल से AC को ऑन करना, तो ये सब चीज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आ जाएंगे. तो रियल लाइफ में कहाँ कहाँ तुमने इनको देखा हुआ है. ठीक है, जब तुम ओके गूगल कर रहे हो, मोबाइल ऑन करके ओके गूगल बोलोगे, उसके बाद वो NLP है. उसके बाद मोबाइल को तुम पूछ रहे हो हाउ टू डू दिस और प्ले दिस सॉन्ग फॉर मी, तो वो जो कर रहा है अपने आप से, वो तुम्हारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से डेटा कम्युनिकेट कर रहा है. ठीक है, तो ये एक एक चीज़ को पढ़ो, पढ़ने के बाद एक बार रियल लाइफ से जोड़ के देखो, और क्वेश्चन आंसर्स आई विल शेयर विथ यू. ठीक है.